आफ्टर ज्वाइन क्लास सर ने जो कोचिंग दिया था, मेरा सोच पूरा अलग हो गया। What I learned from Madan, I'm very shocked. The interview are asking the same question. मेरे अंदर पढ़ने के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रखा है कि अगर मान लो मुझे कोई भी कुछ प्रश्न सवाल पूछे या कुछ भी ना, मैं उसके मुंह पे फटाक से मार दूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है मेरा। और प्राइमरी भी साथ साथ चल रहा है, आप तो हम पढ़ भी रहे हैं और इसको सीख भी रहे हैं। और ये जो थ्योरी आपकी सर, ये तो मैं सैल्यूट करूंगा। लेकिन सर को देख के ऐसा लगा कि कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा था ही नहीं। अभी आ गया है, लेकिन हो जाएगा सर को देख के। Welcome to Wisnik World. For more than 27 years, we have been helping engineers bridge the gap between software knowledge and real project execution. Our Primavera P6 program is built on real EPC, infrastructure, steel, mining, and industrial projects, not just software demonstrations. Now let's hear directly from one of our professionals. My name is Mari Gamal, and I'm having an experience of 15 years in EPC. So I worked as a project engineer in India and in overseas. Currently I am employed with Asas Global as a project lead. So I want to improve my project scheduling skills. So I searched in Google. So that Wisnik came in the top in the search. So I read the reviews, what they are given, what the earlier students what they passed out from this class, how they are, and I searched in the LinkedIn also about this course. So all the reviews says one thing, that the Primavera is very wide area, so it will not cover in limited classes. So the students which passed out from Wisnik write their reviews that they are getting the continuous support, and apart from the Primavera, this course has give the skills regarding the project management. So I called Mr. Madan with a doubtful whether how these classes will go, because it was a long time, because 15 years I have not taken any course after my college. So I doubtfully called, but after speaking within nearly half an hour, we discussed myself and Mr. Madan. So I shared my experience in the projects, and after that he told, after he explained about his journey with this Primavera and the projects. So there it built a confidence. Okay, we will move together to study these classes. The fees and all these things are second thing. First thing, because this long time, 15 years gap, I am sitting for continuously 2.5 years. And the class is very difficult. As you people know, the project people will not sit ideally in the chair. I thought I cannot sit in the class for 2 hours or 2.5 hours. It is very difficult. But with confidence, I have given Mr. Madan, okay, let's go. I will join your classes. Like that, it has started. So first 2-3 classes, okay, it's a Primavera, it's a new entry. But what it was executed in the site, I have no. But in the paper, while it is coming, it will be difficult for us. For me, first 2-3 classes I struggled. Then later on, he has built the confidence. He stopped the software part and he introduced the theory. So there the confidence was came. Okay, it is not a big thing. We are going to make this. Once we are executed in the site, we are going to do it in the paper. So it was like that. So I enjoyed the classes really. By 2.5 hours sitting in a single place and listening to the lecturer. Because you know in college it's mostly 50 minutes. 15 minutes in that itself we will get bored. But here it's good.
many information I received from Mr. Madan, and the lack where I have in the 15 years I have learned, there is many knowledge gap between my learning and the real time. So many inputs I have received. Maybe some of them has missed by him because he cannot teach me all the things. Okay, whatever the things Mr. Madan has given is very valuable to me. And with this I have made an interview for the planning engineer, not for planning, just a project engineer for another one big EPC. So what I learned from Madan, I'm very shocked that the interview are asking the same question. So how the EPC, how it will start, how the process is. So I attended the interview. So it was in the level, okay. It was not yet finished. The level 1, level 2, there were many levels. So I have finished one level. So earlier also I attended many interviews, but there is some difference. Okay, after attending this class, there is some difference of attending the meeting, this interview, and what are all the expectations of the interview. Okay, that little bit I have changed. My lifestyle was changed. Okay, Mr. Madan. Thank you. मेरा नाम सुमन प्रामाणिक है। मैं वेस्ट बंगाल का हूँ। मैं वेस्ट बंगाल का असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट में पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट में काम करता हूँ। यहाँ पे काम करके थक चुका हूँ, तो हमको शायद पता लगाना होगा कि हम यहाँ पे नौकरी छोड़ के दूसरा प्राइवेट में या अदर सेक्टर में जाएंगे। तो मेरा कोई दोस्त है, वो दिल्ली में रहता है, तो उसके साथ बात हुआ था, तो जाएंगे तो कौन सा सेक्टर में हम घुसेंगे। तो पहले डिसाइड किया था डिज़ाइन में जाएंगे, तो वो हमको एक सजेशन दिया, जो डिज़ाइन में नहीं जाओगे तो तुम प्लानिंग सेक्टर में घुसोगे। तो उसके साथ बात करने के बाद हम नेट पे बहुत कुछ कोचिंग सर्च किया नेट पे, तो देखा है यूट्यूब में बहुत कुछ है प्लानिंग के लिए। प्राइमवेरा P6 सीखना चाहिए था, तो मैंने बहुत कुछ यूट्यूब देखा, लेकिन सेटिस्फैक्टरी कहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो वो दोस्त हमको बताया, एक सर है मदन सर का, उसका 27 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो वो हमको नेट से सर का डिटेल्स दिया था, तो वहाँ पे हम सर का कॉन्टैक्ट नंबर मिला था, तो तुरंत हम सर को फ़ोन किया था। पहले दिन जो बात हो रहा है सर के साथ, तो सर ने बताया तुम मेरे पास क्यों आए, कहाँ से तुमको एड्रेस मिला। तो हम सर को बोला मेरा एक दोस्त है, उसी के पास मिला था। तो तभी सर एक बात कर रहे, तो तुम मेरे पास क्यों प्राइमवेरा सीखना चाहते हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, तुम कौन सा सेक्टर में काम कर रहे हो। तो बोलने के बाद सर बोला था तुम अभी 0 लेवल पे है, तो मेरे पास ढूंढा, तुम अच्छा हुआ, हम तुमको सिखा देंगे सब कुछ। तो उसके बाद मैं क्लास में ज्वाइन किया है। मेरा कुछ भी नॉलेज नहीं था P6 में बारे में। आफ्टर ज्वाइन क्लास सर ने जो कोचिंग दिया था, मेरा सोच पूरा अलग हो गया। और सर का क्लास का बात यही है, सिर्फ प्राइमवेरा 6 नहीं है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज छोड़ के मतलब फील्ड सेक्टर में, मतलब कोर सेक्टर में जब जाएंगे तब उसके नॉलेज कैसे होना चाहिए वो हमको अच्छे से पता चला। क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर में कुछ काम नहीं चलेगा, फील्ड में मतलब सॉफ्टवेयर चलाने के लिए फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत कुछ होना चाहिए था। ये सर के पास बहुत अच्छे से मिला, क्योंकि सर थ्योरी पर ध्यान ज़्यादा देता है। क्योंकि थ्योरी पता नहीं चलता है तो प्राइमवेरा सीख के, सर यही बात बार बार बोलता है, प्राइमवेरा सीख के तुम घंटा करोगे, तुम्हारा थ्योरी अच्छे से नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बात हमको अच्छा लगा था। और फिर भी सर का जो क्लास होंगे, वो क्लास मतलब सप्ताह में 2 दिन होता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क में ऐसा चलता है सर का क्लास हम अटेंड करें, हर दिन अटेंड करें, ठीक है। ये हमको अच्छा लगा, क्योंकि सर जो बोलता है ना, वो मतलब हम साइट पे काम जब भी करेंगे उसी की टाइम में हमको नहीं पता चलता है सर जो टीचिंग देता है। तो हमको तो ये क्लास अच्छा लगा, फिर भी मन करता है सर हमारे साथ कंटिन्यू क्लास करेंगे, क्योंकि हम ये क्लास बहुत मिस करेंगे। माय नेम इज मनोज, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। और मैं पहले अपनी जब भुवनेश्वर में था, तो मैं पढ़ाई अपना बीटेक खत्म करने के बाद, तो मुझे कोई ऐसे जानकार के वो एक बंदा था, वो IITian था,
तो मुझे बोला था कि प्राइमवेरा तुझे करना चाहिए पहले से ही। भले एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, लेकिन बोल रहा था प्राइमवेरा करना चाहिए, दिमाग में था मेरा करने के लिए। तो मैंने पहले आपसे ही बात किया था मैंने फोन पे कि सर ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उस समय थोड़ा सा मुझे पैसे की मेरी दिक्कत थी, कुछ थी, तो मुझे किसी ने डाइवर्ट करा दिया कि तुम एक जगह किसी एकेडमी में कर लो, ऐसे कुछ बता दिया उसने। तो मैं वहां गया था पढ़ने के लिए, तो गया तो सही, उन्होंने मुझे जैसे सॉफ्टवेयर पढ़ाना वैसे ऊपर ऊपर से सब पढ़ा दिया मेरे से पैसे भी उसने ले लिया, कुछ पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ उसको। मैं मुझ तो इतना हो गया कि हाँ मैंने पढ़ रखा है, लेकिन इतना दिमाग में नहीं आया कि भाई यार इसे यूज कैसे करना है, क्या करना है, कुछ ऐसा कुछ को समझ में नहीं आया। फिर मैंने प्राइमवेरा तो जान तो रखा था, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया, अप्लाई नहीं किया। फिर मैंने कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम किया, सब कुछ किया, इसको यूज नहीं किया। मुझे पता है कि उसमें डीपली में गया ही नहीं, उसके अंदर मुझे पढ़ाया नहीं गया कि कैसे कैसे उसको करना है, खाली सॉफ्टवेयर ऊपर से पढ़ा दिया गया मुझे। और उसके बाद मैं उसमें ऑफलाइन क्लास किया था उसके पास जाके, लेकिन फिर भी जैसे जैसे उन्होंने बता दिया कि ये कर लो वो कर लो, बस मैंने देख लिया ऊपर और बस नोट्स बना लिया अपना, बस वही रख लिया, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद जब कुछ दिन ऐसे कुछ साल बाद, फिर 3, 4, 5 साल बाद मुझे ध्यान आया यार मुझे गलत जगह में चला गया। मुझे उस गुरु को जो मुझे पहले आप बताया गया था, मैं वहां उसके पास पहुंचना चाहिए, मेरे को गलत जगह पहुंच गया, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी ये नहीं है। तो फिर मैं जिससे मेरी पहली बात हुई थी, जो हमारे आइडिया थे, तो बोला कि उसने कुछ सर्च किया, कुछ किया होगा, तो बोले कि मुझे पता चला कि मैं एक बार आपका नंबर था मेरे पास पहले से सेव था, आपकी इंटरनेशनल ग्रुप करके एक वो था, उसमें मैं सेव था सर। उसमें मुझे आपने ऐड कर लिया था मेरे नंबर पे, तो मैं उसको देखता था कि आप क्या कमेंट्स करते हैं, किस पे किस तरीके से प्लानिंग आता है। तो मैंने उसको देखा, मोटिवेट हुआ यार सर के पास तो बहुत सारे ऐसे है, मैं कहाँ फंस गया आगे। तो फिर मैंने ट्राई किया आपको कि नहीं अब मुझे बात करना है सर से कैसे भी करके। बहुत दिन से लग रहा था कि मैं बात करूं, लेकिन करूं या ना करूं सोच के मुझे अब तो बहुत हो गया, मैं पीछे ही रह जाऊंगा, आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। फिर मैंने आपसे बात किया, फिर बात करने के बाद फिर मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरे अंदर कि नहीं मुझे अब सर के पास पढ़ना है। और पढ़ने के बाद मुझे आपकी थ्योरी, जो चीज मुझे इंटरव्यू में फेस किया था जाके, कि मुझे जैसे मान लो कि प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे जो चीजें मुझे पूछा गया था, मैं जिससे फेल हो गया था, वो आपने वो डायरेक्टली मुझे बता दिया। तो मैं मतलब बताया आपने, मुझे बताया, तो मुझे वो लगा कि हाँ यार, तो ये सारी चीजें तो मैं पहले आपके पास आके सीखता, तो आज किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया रहता, आज कॉन्ट्रैक्टर में नहीं रहता मैं कहीं। तो फिर मैं आपकी वो थ्योरी को ज्यादा उसमें डीपली ध्यान दिया। आपकी थ्योरीज बहुत बढ़िया है सर, ये थ्योरीज कहीं भी नहीं मिलता, आपको सिखाता भी नहीं है। मैंने भी देख लिया, मैंने भी प्राइमवेरा किया था जिसके पास, वो कहाँ मुझे सिखाया जैसा कुछ, खाली सॉफ्टवेयर सिखा दिया था मेरे को। और ये थ्योरी बहुत बढ़िया थ्योरी सर, मैं इसकी थ्योरी को भी, आपकी थ्योरियों को भी नॉलेज में रखा हूँ, और मेरे अंदर पढ़ने के बाद ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रखा है कि अगर मान लो मुझे कोई भी कुछ प्रश्न सवाल पूछे या कुछ भी ना, मैं उसके मुंह पे फटाक से मार दूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है मेरा। और प्राइमवेरा भी साथ साथ चल रहा है, आप हम पढ़ भी रहे हैं और इसको सीख भी रहे हैं। और ये जो थ्योरी आपकी सर, ये तो मैं सैल्यूट करूंगा, थ्योरी तो खतरनाक है सर आपका। और सर मैं वही कहूंगा कि आपके साथ जुड़े हुए रहना चाहते हैं हम, और कोशिश कर। और सर और भी कुछ भी नॉलेज हो सर, कुछ भी, जैसे हमें देखो सारी चीज तो पता नहीं रहता, आपके पास कुछ और भी हो जो हम इंटरव्यू में फेस कर सकते हैं, वो चीजें हमें सबको बताइए, हम आपको सबको, ताकि हम इंटरव्यू जाके कम से कम फेस तो कर सकते हैं। सर काम तो अंदर घुसने के बाद भी कर लेंगे हम टेंशन लेके, लेकिन पहले तो अंदर तो घुसे। तो ये चीज के लिए सर आप हमें कुछ ऐसा कीजिए कि हम इंटरव्यू फेस कर सके हम लोगों के पास। ये बस ये कहना है सर, आप तो सर आप मतलब आउटस्टैंडिंग है सर, इसको कह नहीं सकते। जो कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न आदमी होता है ना, उसको क्या तारीफ करें, सब पता है ऑटोमेटिक सारी चीजें, तो उसको कहने की जरूरत नहीं, आप तो ऑलमाइटी सर। मेरा नाम श्याम कुमार है और करंटली मैं एक PSU कंपनी में जॉब कर रहा हूँ एज ए QA एंड प्लानिंग। और मेरे को टोटल अराउंड 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरे को इंफ्रा में भी एक्सपीरियंस है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट में भी है, और हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में भी मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करा है स्टार्ट टू फिनिश। और इससे पहले मैं भी कई बार यूट्यूब से भी प्राइमवेरा के बारे में पढ़ा था और मेरे कॉलेज में भी पढ़ाया गया था। बट क्या था कि मैं जब भी इंटरव्यू फेस करता था P6 के लिए, तो वो इतना क्वेश्चन पूछते थे तो उतना समझ में नहीं आता था। तो फिर मेरे को लगता है नहीं, मेरे को कॉलेज टाइम में ही अच्छे से थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहिए।
फिर मैं ऐसे ही करके सर्च करा कि हु इज द बेस्ट P6 ट्रेनर इन इंडिया। तो देखिए मदन सर का नाम आया, तो मैं बस ऐसे कॉल करा तो सर मेरे को स्टार्टिंग में लगे कि अरे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, लेकिन बात करके मेरे को लगा कि नहीं कुछ तो बात है। तो मेरे दिमाग में ये था कि चलो हम टाइम लेते हैं, इनसे तो बात हो गया है, अगर दोबारा कॉल कर लेंगे ना कि आप कब एडमिशन ले रहे हैं, तो मैं कभी एडमिशन नहीं लूंगा। अगर कॉल नहीं करते हैं तो श्योर एडमिशन लूंगा। तो मैं कॉल नहीं किया, मैं कल की वेट किया, 2 दिन वेट किया, फिर लगा नहीं आज से क्लास स्टार्ट है। तो मैंने सर को कॉल करा, बोला सर ऐसा है, हम ठीक क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सर ने बताया कि ठीक है आप ऐसा कर लो, ये कर लो, और मैं क्लास स्टार्ट किया। तो मैं बस यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सर एक अच्छे इंसान है, पहला थिंग। दूसरा एक अच्छे टीचर भी है। क्यों टीचर क्यों है? कि एक टीचर का अच्छा ये होता है ना, या ट्रेनर का ये रहता है कि जो आपको जिस चीज़ का ट्रेनिंग देना उसमें वो बंदा आपको इंटरेस्ट ला दे, बस वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। और सर ने मेरे को P6 में इतना इंटरेस्ट ला दिया है कि मैं आज के डेट में कम से कम 2 से 3 कम से कम 5 घंटा भी ना मैं बस P6 पे काम करता हूँ। मैं नाइट में ना चैट GPT से क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये करेंगे। तो सर ने वो एक काम कर दिया है, बस इंटरेस्ट ला दिया है। और सर का हेल्प रहेगा, उन्होंने बोला भी है कि तो देखते हैं कि क्या होता है आगे। बट अभी तक का जर्नी सर के साथ बहुत ही अच्छा रहा है, और नो डाउट ऐसे लोग काफ़ी कम मिलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब एक फैमिली की तरह जुड़ गए हैं, और हम सर को बोले हैं कि सर हम आपको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। यही मेरा जर्नी है। मेरा नाम जन्मेश सतपति है, मैं उड़ीसा कटक से हूँ। मैं बेसिकली काम करता हूँ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, एक MEP प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ मैं। तो मेरे को 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं काम जब स्टार्ट किया तब से अभी तक साइट पे काम कर रहा था। तो मेरे को ऐसा आता था दिमाग में कि प्राइम वगैरह करना है। तो हमारे ऑफिस में कुछ निकमार से बंदे थे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से थे। तो वो ऐसे आके बोले कि भैया ये चीज़ ऐसे होता है वैसे होता है, उनको करते हुए मैं देखा था। तो जब थोड़ा मेरा प्रोजेक्ट डाउन गया, काम वाम थोड़ा बंद हो गया, तो मैं सर्च करने लगा तो कैसे करूँगा। तो ऐसे ही सर्च करके गूगल से ही सर को कॉल किया था, और शायद 3-4 दिन तक सर को परेशान किया था कि सर प्राइस इतना क्यों है, करने से क्या होगा। सर भी पूछे कि अरे भाई तेरे को करना है नहीं करूँगा, फिर सोच में पड़ जाऊँगा करना वर्थ इट है या नहीं है। तो ऐसे सोचते तो पता नहीं कर लिया, मतलब ऐसे ही कि चलो कर लेते हैं, कोई नहीं। अगर पहला जो मेरे को मिला है आदत है, जो फर्स्ट मिल गया उसी को कर लूँगा मैं। तो कर दिया मेरा। एक बार सर ऐसा हुआ था, मैं आपको ये बताया नहीं, जो बंदे हमारा वैसे ही आसिफ करके एक बंदा है हमारे पास प्राइमेरा में। तो वो कर रहा था WBS को कर रहा था। तो आपका क्लास हुआ था, मतलब स्टार्टिंग ही हुआ था, 3-4 क्लास गया था या 4-5 क्लास हुआ। उसको मैं जाके बता के आ गया था कि नहीं भाई तू ऐसे कर रहा है, वैसे करना चाहिए। तो वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा मिला। और एक बार आपको बताया था सर, बाइनरी सॉर्टिंग जैसा होता है, मेरे को 2 रात लगा था, वो हो ही नहीं रहा था मुझे। मैं पागल हो गया था। मैं बस प्राइमेरा इंस्टॉल कर लिया, मैं ChatGPT से पढ़ने लगा था यूट्यूब से। लेकिन वही चीज़ मेरे को कोई नहीं बोला था, सर शायद 1 सेकंड में उसको बता दिए। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस मेरे को आ गया। बाकी सर का थ्योरी में तो हूँ, मतलब मेरे को इस लाइन पे कुछ पता नहीं है ज़्यादा। मैं सब में शायद नया हूँ मैं और छोटा भी हूँ मैं। तो यही है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है यहाँ पे। बाकी सर के साथ तो जुड़ा रहूँगा, क्योंकि जब पहला स्टार्ट करूँगा प्लानिंग में तो सर को ही पकड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि इतना वो तो नहीं होता हमसे, क्योंकि हम साइड से है तो हमको इतना प्रोफेशनली थोड़ा काम करने में होता है दिक्कत। लेकिन सर को देख के ऐसा लगा कि कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा था ही नहीं। अभी आ गया है, लेकिन हो जाएगा सर को देख के।